Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you from the platform of KIPS CSS preparation. Today we have Mariam Zahid, who has secured the 4th position all over Pakistan and has been allocated to the Pakistan Administrative Service or PAS group. How are you doing, Mariam? I'm doing very well and feeling very blessed at the moment. So what were your feelings जब आपका रिजल्ट आया तो आपके क्या तासुरात थे? What were you expecting? I think Saturday का दिन था, बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा डे था. पीपल weren't really sure कि आएगा नहीं आएगा. तो who told you about it और कैसा रहा आपका? What was your first reaction when you found out about it? फर्स्ट ऑफ ऑल वाकई बहुत अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि वीकडेज पर रिजल्ट आ रहे थे तो सैटरडे वाज एन ऑफ डे फॉर अस सो बट अनएक्सपेक्टेडली आ गया and the very first reaction was of disbelief and I just screamed and I said fourth position. So after that now I'm feeling very blessed, honored, humble. But that आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला? they were very overwhelmed and they were not expecting that much success. They were expecting कि ओके अच्छा ग्रुप आएगा, पास PSP कस्टम तक जाएगा, but top positions they were not expecting. अच्छा, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी CSS की? Yes, it was my Lovely. first attempt. So could you tell us about your educational background? आपने पहले क्या किया हुआ है, बैचलर, स्कूलिंग, मास्टर्स के हवाले से, so that our audience can understand आपकी previous journey क्या रही है? I'm a graduate of King Edward Medical University. So basically, the thing is that I did CSS alongside my 4th year of MBBS. I haven't graduated yet even. Today was my last paper of MBBS. Wow. So I did BSc separately because people then asked me, then how could you appear if you haven't completed MBBS? Right. So I did for BSc, and then when I completed BSc, then I applied on that BSc degree. I didn't apply on my MBBS degree. तो किंग एडवर्ड के लोगों का तो बड़ा एक अच्छा प्रॉमिसिंग करियर होता है मेडिकल में. आई थिंक 2 ही जगह हैं, केई है, अल्लामा इकबाल है और हमारा जो है वो आपकी जो कराची में आगा खान है. सो हाउ डिड यू प्लान टू शिफ्ट योर करियर? आई मीन व्हाई डिड यू वांट टू परस्यू CSS? व्हाट वाज दैट इंक्लिनेशन या मोटिवेशन? Despite having such a certain career, why did you want to opt for something so uncertain like CSS? I personally believe that to start with that very famous quote, there must be a cause within yourself to give rise to that dancing star. Say. So I don't believe that I could settle for less. Whenever you are pursuing something, so if I went into King Edward, I wasn't even satisfied there. I thought Right. I could do something You else. thought you could do something better. Better than that. Then I started doing CSS, and apart from that, CSS I guess is the platform to serve the public at a broader cause. Because being in the medicine, Same. the domain is very unilateral. ठीक है. Whereas in CSS you could perform So multi-dimensionally. sole purpose was to serve humanity at a broader scale, do something larger than life, Yes. which unfortunately medical couldn't offer उस तरह से. Exactly. So you wanted something way beyond that, right? तो मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई ऐसे लोग जिन्होंने आपको पुश किया या आप लोगों को कन्विंस किया कि आप इस तरफ आओ, your father or anybody from your family, या are you one of the first CSPs in your family? I'm the very first CSP of my family. In fact, I'm the very first doctor of my family. Oh, माशाल्लाह माशाल्लाह. So I am assuming आपका मेडिकल का रिजल्ट अभी वेटेड होगा, लेकिन CSS Yes. का ऑलरेडी आ गया है. Yes. So जो आपने मेडिसिन के साथ साथ अपना बैचलर्स, आपने BA की डिग्री ली, उसका सोल पर्पस CSS को परस्यू करना था. Exactly. So you had that plan in your head. Exactly. For how much time did you prepare for the exam? It was around about 7 months, 7 to months. 6 to 8. लोगों का अक्सर ये सवाल होता है, कुछ लोग 4 साल ले लेते हैं, कुछ लोग 3 महीने में कर लेते हैं. मेरा ये ख्याल है कि 8 से 10 महीने की तैयारी आपको It is रिक्वायर्ड must. होती है एग्जाम के साथ जस्टिस करने के लिए. और मरियम के केस में भी शी कैन अटेस्ट टू दिस फैक्ट कि अच्छी तैयारी के लिए 7 to 8 Exactly. डेडिकेटेड मंथ्स आपको रिक्वायर्ड चाहिए. होते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बाकी प्रेफरेंसेस क्या थी ग्रुप्स की? फर्स्ट पास थी और बाकी 2-3 प्रेफरेंसेस कौन सी थी? PAS, then police, PSP, then customs, then IRS, then MLCG, and I had 4 at the very last. अच्छा, MLCG एक बड़ा उस तरह का ग्रुप है. कुछ Controversial लोग है. उसको कंट्रोवर्शियल भी और not everybody likes it, Likes but it. from what I have heard it's one of the best groups, especially for women. So MLCG के बारे में आपको क्यों चीज़ ये करती है, आपने 5th एज ऑप्शन रखी हुई थी उसको? I don't want to go abroad. ठीक है. I was sure for this thing, so मुझे foreign नीचे करनी थी. And MLCG, why it is better because आपकी स्टेशन पोस्टिंग है, कैंट में पोस्टिंग, you are like an AC within a कैंट. Right. और बड़ी सर्विस बहुत नीट और बड़ी वो पीसफुल सर्विस है, तो बिल्कुल. that is why I prefer और it. लड़कियों के लिए आई थिंक it's It's a very wonderful good service. thing, yes, it's So wonderful. pass के लिए क्या मतलब? I was interviewing one of my juniors at LUMS as well yesterday. Jamshed, he's secured Yes. 13th position in Pakistan.
तो आई वांटेड टू आस्क, उसने अपनी पहली प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस रखी हुई थी और उसका जो आंसर्स थे ना वो बड़े ऑन पॉइंट थे कि फॉरेन सर्विस इसलिए क्योंकि यू नो ही गेव मी अ वेरी गुड सॉलिड जिसे कहते हैं ना कोजेंट आंसर्स. तो why pass? Why did you choose Pakistan Armed State Service as your first choice? There are a number of reasons. Number one is that I believe कि country जब internally strong होगी then only हम foreign matters पर discuss करेंगे. First we need to strengthen our own roots which are in shackles unfortunately. Right. उसके बाद हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज, पॉलिसी मेकिंग फ्लॉज, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के फ्लॉज इतने ज़्यादा हैं कि आई बिलीव कि पास बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिविलेज यू कैन एंजॉय बीइंग इन द सिविल सर्विस. सेकेंडली बीइंग अ डॉक्टर आई अंडरस्टूड कि जो एक इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डालता है किसी जगह पे वो एक डॉक्टर नहीं डाल पाता, वो एक फॉरेन डिप्लोमेट नहीं डाल पाता. सो आई प्रेफर्ड पास. आपको वो नहीं था कि मैं कोई यूनिफॉर्म वाली पोस्ट लूँ लाइक फॉर इंस्टेंस कस्टम्स या पुलिस जहाँ पे ज़रा ज़्यादा बंदे को वो टेका होता है, या पास इज़ फाइन? PAS itself enjoys a number of privileges and being a universal choice, so I thought कि PAS is the best service one could ever have because इसमें आपको you can enjoy multiple things in here. You can go to foreign missions, you can head any project over here, you can achieve, I think you every dream within this group. It is so vast a group. Great. If you don't mind me asking, yesterday I was interviewing Jamshed, he's just 23. Yes. So I am assuming आप भी around 23-25 के bracket में होंगे. But I passed. I was 22. It is amazing to see कि young officers आ रहे हैं, people who have their whole careers ahead of them. They have a lot of years. और लोग 30 साल में bureaucrat बनते हैं, but you're 6-7 years ahead of them. That's wonderful to see. अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, आपने अपनी DMC देख ली है, आपकी DMC आउट हो गई है. Exactly. लोग जानना चाहेंगे कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे एंड व्हाट वाज योर मेन क्राइटेरिया व्हाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शनल्स. आपने किन चीज़ों का माइंड में रखा कि यार इन चीज़ों की बेसिस पे आई विल सिलेक्ट माय ऑप्शनल्स. एंड नाउ दैट यू हैव सीन योर डिटेल्ड मार्क कार्ड एज वेल, वी वुड लाइक टू नो योर स्कोर्स जनरली, हाउ डिड दे गो? Okay, first of all, my optionals were political science, governance and public policy, environment science, Punjabi and criminology. Basically I chose them because the cohort or the combination was like satisfying. मुझे लगा अगर मैं पोल साइंस रख रही हूँ तो पाकिस्तान अफेयर्स में इनसाइड जा रही है, अब मुझे पब्लिक पॉलिसी रखनी चाहिए दैट कॉम्प्लीमेंट कर सके सिलेबस को और एक आपकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग का होलिस्टिक व्यू आता है. तो मैंने वो सोच के अपने सब्जेक्ट्स रखे. बाकी पंजाबी का मेन पर्पस होता है आपको स्कोर देना. बिल्कुल, languages are always a good idea. Punjabi has always been high scoring in CSS. And criminology is so interesting that I wanted to opt it. So ये सब्जेक्ट्स का कोहॉर्ट था. बाकी DMC में मार्क्स आई गॉट एक्सेप्शनल मार्क्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी. आई गॉट 85 आउट ऑफ 100 मार्क्स. वाओ, आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट दैट. अच्छा, सो प्राइमरीली हम लोग भी बताते होते हैं ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए एक अपना इंटरेस्ट देखें, एक अपना बैकग्राउंड देखें, एक आप देखें कि कौन सा सब्जेक्ट किसी और को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. योर केस आपने वो देखा. चौथा आपने ये देखा स्कोरिंग ट्रेंड को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है. और लास्टली आपने ये भी देखा कि आपका कहाँ पे टिल्ट है या आप कहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, राइट? अच्छा, मेरा सवाल ये था कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आता है बस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एड वाले ग्रुप में. तो जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा था बिकॉज इट वाज माय रिलेटेड टू माय बैकग्राउंड और मुझे बड़ा अच्छा स्कोर ले सकता था. अब लोग GPP की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हाई डिड यू चूज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और उसका क्या एज है एज कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? आजकल बड़ा हॉट और इन है ये सब्जेक्ट एंड यू माशाल्लाह स्कोर्ड 85 मार्क्स. सो यू वुड लाइक टू नो मोर, व्हाई वुड यू रिकमेंड दैट सब्जेक्ट, से क्या फायदे हैं? कुड यू एलैबोरेट ऑन दैट? यस, श्योर. गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, आई गेस इस सब्जेक्ट को रखने से ना यू कुड परफॉर्म बेटर इन नंबर ऑफ फेज, इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इन इंटरव्यू एज वेल. क्योंकि गवर्नेंस इज़ द मेन क्राइसिस वी आर करंटली सफरिंग फ्रॉम. तो आपको जब चीज़ को पढ़ते हैं आपको पता ही नहीं गुड गवर्नेंस चीज़ क्या, उसके पैरामीटर्स क्या हैं एंड हम किस क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं. तो हाउ कुड यू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर? आपका सोल पर्पस था कि यार ये मेरी रोल से रिलेट करे. Exactly, I wanted even now I wanted to pursue this as in masters in MPhil and PhD in GPP because ये बहुत एक अलाइन कर रहा है PAS की पोस्ट के साथ. सिमिलरली पॉलिसी मेकिंग, जब आप पॉलिसी मेकिंग नहीं पढ़ते तो आप CSS को लाइक डोमेन जो PAS की उसको अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. और लोगों को जो टिल्ट आ रहा है वो आई गेस पब्लिक एड हिट बहुत हो रही है तो लोग अब GPP पे आ रहे हैं कि स्कोरिंग अच्छी है. और जब आप देख रही थी पब्लिक एड और GPP के प्राइमरीली जो कोर्स कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? एक जैसे हैं, ज़्यादा आसान है GPP, मुश्किल है? जनरली अगर एक लेमैन को हम समझाएं जो अभी एस्पायर कर रहे हैं 25 या 26 के अटेम्प्ट के लिए, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी? इन दो सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से लेकर चलें चीज़ों को?
एक्चुअली दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ये कि हम इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं, अब बहुत ओवरलैपिंग सिलेबस इनका बना दिया गया है जिस वजह से लगता है कि सिमिलर है. आउट ऑफ देम पब्लिक एड इज थ्योरेटिकल, जीपीपी इज प्रैक्टिकल. इतना फर्क. पब्लिक एड थोड़ा थ्योरेटिकल और रट्टा बेस्ड है, थ्योरीज हैं. जीपीपी इज मोर अप्लाइड एंड मोर रेलेवेंट टू पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एज वेल. अभी आपको क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे दे आर वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर नॉलेज ओवर देयर. While in public ad, आपने जो cram की can even produce that knowledge in your paper, तो you can perform good easily. So आपने O levels किया हुआ है या आपने अपना matriculation की थी? No, I have done matriculation. ठीक है. अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग majority CSS में metric और FSC के background से आते हैं. बहुत ज़्यादा लोगों का main concern CSS में होता है अंग्रेजी. अंग्रेजी नहीं ठीक, struggling with basic English grammar, structure, tenses, you know that's a major prerequisite. So I wanted to ask you कि OA लेवल्स वालों को तो थोड़ा सा एज होता है क्योंकि उनकी अंग्रेजी वगैरह ठीक होती है और हमारा एग्जाम ही CSS का अंग्रेजी में है. तो आपकी अंग्रेजी के हवाले से आपने किसी चीज़ पे काम किया व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी? डिड यू हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज या यू वर्कड ऑन इट कॉन्शियसली? आई जस्ट वांटेड टू नो कि अंग्रेजी के हवाले से ऑडियंस को क्या गाइड करेंगे और आपने कैसे इसको टैकल किया? हाँ, आई डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड ऑन इंग्लिश बिकॉज हमने MCAT किया होता है और जैसे आई हैव स्टडीड फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल बेसिकली. तो कॉन्वेंट के करिकुलम इज़ वेरी मच, कॉन्वेंट के लोग बहुत ब्राइट होते हैं. देन आई स्टडीड फ्रॉम DPS और वो सारा, तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ा. बट फॉर एस्पायरेंट्स आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट वेयर देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ यू बीइंग फ्लंकिंग इट. तो ऐसे को टैकल करना इज़ वेरी वेरी यू क्रूशियल पार्ट एंड वेरी टेक्निकल पार्ट एज वेल. उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, हर चीज़ पे कमांड होनी चाहिए. एग्जामिनर किसी एक को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. तो क्या ये बात ठीक है, सिंस आपकी तो बेसिक इंग्लिश लाइक ठीक थी आपकी स्कूलिंग की वजह से, तो एस्पायरेंट्स को पहले अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर ठीक करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बगैर CSS से कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा, इसके अलावा मरियम, वी वुड लाइक टू नो कि फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग, फॉर दोज हु आर कंसिडरिंग टू परस्यू CSS, क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं जो उनको कंसिडर करने हैं या मीट करने हैं ताकि वो अपने चांसेस टू क्वालिफाई लाइक यू डिड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? माशाल्लाह, आई वाज आल्सो क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं? वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू सिंस यू जस्ट बीन थ्रू द प्रोसेस, जो आज से ही हम लोगों को या एस्पायरेंट्स को कंसिडर करने हैं इंग्लिश के साथ साथ. इफ यू कुड नेम अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहली बात है प्रेसी अ डे कीप्स द फेलियर अवे. इट इज अ वेरी वेरी प्रेसी अ डे कीप्स द फेलियर अवे. प्लीज नोट दैट. अच्छा. सेकेंडली, ऐसे राइटिंग आई थिंक यू शुड बी कांस्टेंट विद दैट 3 to 4 आउटलाइंस पर वीक. ठीक है. फॉर माय केस 3 to 4 आउटलाइंस पर वीक. सो अगर आप नोटिस करें रिटन प्रैक्टिस की गेम है बाय एंड लार्ज. जी, इट इज रिटन, ओनली रिटन प्रैक्टिस. देन आई से कि कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक इसमें गैप बहुत लोग ले लेते हैं. जर्नी लंबी है तो उसमें हम इन द टाइम मिड ऑफ टाइम्स वी फील लाइक कौन सा रिजल्ट आ रहा है, पेपर दूर है, तो वो जो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, दैट इज़ दी वेरी पिटफॉल इन योर जर्नी. तो वो नहीं आने. अंग्रेजी पे काम करना है, कंसिस्टेंटली लिखना है, प्रेसीज लिखनी है, आउटलाइंस बनानी है, इवैल्यूएशंस, रेगुलर इवैल्यूएशंस. अगर आप लिख रहे हैं, इवैल्यूएट नहीं कर रहे, उसका फायदा ही नहीं. बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, बस पूरा दिन पढ़ते रहे, बाद में लिख लेंगे. दे एंड अप इन फेलियर बिकॉज़ दे डिड नॉट प्रैक्टिस. एग्जैक्टली. गुड. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने, क्योंकि आपका IR था, No, I had political science. So पॉल साइंस और आपने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा वाम होती है कौन से रिसोर्सेज को कंसल्ट करें, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, चैनल्स, थिंक टैंक्स. सो इफ़ यू कुड जस्ट हेल्प अस by telling a few resources that you consulted while doing your preparation, कहाँ से अच्छी कॉन्क्रीट क्रिस्प तैयारी कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए? अच्छा, एज पर माई परस्पेक्टिव आई बिलीव कि सोर्सेज ना सबके पास सेम ही है ऑलमोस्ट. ठीक है. इट इज़ योर ओन प्रेजेंटेशन कि आप मटेरियल को प्रोड्यूस किस तरह कर रहे हैं पेपर में, किस तरह आप लिख रहे हैं, कितना आपको अच्छा लिखना आ रहा है. सेकेंडली, ये कि लोकल सोर्सेज पर रिलाई करना छोड़कर अगर हम फॉरेन मैगजीन्स पर पढ़ें, इकोनॉमिस्ट देखें या उसकी वॉक्स और इस तरह के चैनल्स को सुने ना, वो आपका एक ब्रॉडन करते हैं माइंड सेट. बजाय ये क्या वो एक किताब ट्रैक्टिव पाकिस्तान पकड़े और उसको रट्टा लगाना शुरू कर दें, तो वो सब कर लेंगे. सही है. तो थोड़े से रिसोर्सेज आपने वॉक्स का नाम लिया, द इकोनॉमिस्ट का नाम लिया, फॉरेन मैगजीन, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, अल जजीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो यूट्यूब के वीडियोस और चैनल्स हो गए. इसके अलावा कोई इंटरनेशनल थिंक टैंक्स या लोकल थिंक टैंक्स या बुक्स जिनको आपने कंसल्ट किया हो? देयर आर नंबर ऑफ बुक्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह करना है कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, वो तो करनी है. अब पाकिस्तान के न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? डॉन. आई रेड डॉन. एवरीवन इज गुड, बट मुझे डॉन. बट डॉन भी ठीक है, डेली टाइम्स भी ठीक है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी ठीक है. मेरा ख्याल है कि डॉन वाले केस के अंदर
थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह ठीक होते हैं। और बाकी जो 2-3 बुक्स बता दें जो स्टार्टर्स के लिए हम शुरू कर सकते हैं। स्टार्टर्स में ये कि आपको पाकिस्तान के इंटरनल फिर थोड़ी ग्रिप करने के लिए मलिहा लोधी की बुक्स पढ़ने, वो एक छोटा सा स्टार्टअप होता है कि आपको एक थोड़ा विजन बन जाता है ना, बियॉन्ड द क्राइसिस पढ़ लें, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री एंड फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की 3-4 किताबें पढ़ने से ना एक थोड़ा अलाइनमेंट बन जाती है। फिर उसके बाद आप बड़ी किताबों में जाएं जो भी आपको पसंद है। अच्छा, कहते हैं कि सीएसएस का रिटन पार्ट नॉलेज से ज़्यादा एक टेक्निक का नाम है। इट इज़ एग्जैक्टली। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? लोग पढ़ते रहते हैं, नॉलेज गैदर करते रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज़ अ टेक्निक दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट, अप्लाई। सो इस पे आप क्या कमेंट करेंगी? सीएसएस के सक्सेस और क्रैक करने का क्या राज है? इट इज़ ओनली अ टेक्निकल एग्जाम, आई 100% एग्री। पढ़ता अगर आप 2 लोगों को बिठाते हैं, दोनों को कहें वो सेम पढ़ेंगे, लेकिन एक बंदा टेक्निक नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं यूज़ कर रहा ना, ही विल फेल। वेल द अदर वन वो हाफ उसकी कर ले हार्ड वर्क, बट वो स्मार्ट वर्क यूज़ करे तो वो सक्सीड हो। पेपर प्रेजेंटेशन आपका स्ट्रक्चर कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज एग्जामिनर इज गोइंग to check the paper of thousands of students, so you need to work your paper in order to stand it out from the rest of the candidates. तो कुछ ऐसा करना है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, उसको लगे कि मैंने 60 से ऊपर नंबर देना, वरना वही नॉर्मली वो 30-40 What are those tricks of trade या gimmicks that you need to incorporate in your paper जिससे आपको maximum marks आप fetch कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ योर हेडिंग्स, दे शुड बी रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन। ये नहीं कि आप क्वेश्चन कुछ पूछा, आप हेडिंग कुछ बना रहे हैं, और अगर आप कुछ हेडिंग बना रहे हैं तो उसको रेलेवेंट, उसको रिलेट करें। इतनी आपकी हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर हर हेडिंग में जा रहा हो। अच्छी हेडिंग्स। अच्छा, डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत बुरी होती है, मेरे अभी भी डॉक्टर्स हैं तो आई हर्ड उनका लिखने का बहुत है, तो डिड यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग एज वेल, हैंड राइटिंग? माय हैंडराइटिंग इज वेरी गुड। ग्रेट, सो दैट गिव यू एन एज। या इट इज पंजाबी है और 70 मार्क्स। बाकी क्या चीजें हैं? मैप्स का यूज, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, देन रेफरेंसेस फ्रॉम द गुड क्वालिटी सोर्सेज, कि आप इकोनॉमिस्ट और ये सारे जो क्वालिटी सोर्सेज के रेफरेंस ऐड करें, क्वालिटी बुक्स के डालें, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा आपने पढ़ा होगा, आपने डेमोक्रेसी पढ़ी हुई है, पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, तो रेफरेंसेस ऐड करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी लोग तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू करना है या हु आर अबाउट टू एंटर दिस जर्नी, उनके लिए आप क्या कहेंगी? कि मतलब कुछ लोग कहते हैं पासिंग रेट बहुत कम है, अनसर्टन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए सीएसएस, इसके बारे में। और दूसरा, हाउ शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम समबडी हु इज एन एमेच्योर या बिल्कुल बिगिनर है, वो क्या करें? एक तो सीएसएस की इंस्पिरेशन क्या है और तैयारी कैसे आगाज करें? पहला ये कि अगर कोई करना चाह रहा है और उसको लग रहा है कि मुश्किल है, तो एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट अनलेस यू डू इट। तो अगर आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो बिलीव मी होल यूनिवर्स अलाइंस और आपको चीज़ मिल जाती है। बट व्हाट काउंट्स इज़ योर डिटर्मिनेशन, योर हार्ड वर्क एंड योर पैशन, बर्निंग पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अभी ये सोचना कि इतने लोगों का हो, इतने का नहीं हो, दैट इज़ नॉट द गेम। जाना उसके अंदर उसको करके दिखाना इज़ द मेजर थिंग ना। एंड सेकंड क्वेश्चन आई फॉरगॉट। दूसरा मैं पूछ रहा था कि अभी जो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करनी है, जरा थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन करके बता दें कि हाउ शुड वन किक स्टार्ट देयर सीएसएस जर्नी? रूटीन क्या होनी चाहिए, कितने आवर्स देने हैं, 7-8 महीने तो हमने कर लिया, और किस तरह से स्टार्ट करें ताकि वो उस फ्लो में आ जाए कि यार हाँ वी विल बी एबल टू क्वालिफाई इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट? पहला, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड स्ट्रक्चर को अगर आपका ठीक है तो सही है, वरना उस पे काम करें। उस पे काम करना है। सो पहली चीज इंग्लिश पे ऊपर काम करें, देन शुरू से लिखना स्टार्ट एसे एंड प्रेसी, उसको डील करना है। और फिर आप अपना एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल साथ साथ स्टार्ट करें, और ऑप्शनल को कंपलसरी रोज़ के 3-3 घंटे दें, या अगर आपको पसंद है कि आपने एक ही करना है तो उसका टाइम टेबल बनाएं। सब ब्लाइंड स्टडी का तो फ़ायदा नहीं है, टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इसको 10 दिन में करना है। डिवाइड करें सिलेबस को, पास्ट पेपर क्वेश्चन देखें और उसको करें, और दैन जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं पास्ट पेपर उनको लिख कर भी देखें एट द एंड, वरना फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो इस तरह है। इंग्लिश को साथ साथ लेके चलें, एसे प्रेसी अटेम्प्ट करें, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करें। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट एडवाइस कि एक कंपलसरी पकड़ लें और एक ऑप्शनल पकड़ लें, उसको पैरेलल लेकर चलें, बोरियत भी नहीं होगी, मोनोटनी भी ब्रेक होगी। और मैं कहता हूं कि अपने आर्ट से ज्यादा अपने आप को टास्क ओरिएंटेड बनाएं, आपको पता हो कि यार आपने एक दिन में इतना कंप्लीट करना है। अच्छा, लोगों को नोट्स बनाते हुए इशू होता है। I'm not sure if you did this, but long notes से eventually you move towards short notes and one-pager notes, which essentially help you in your final, जिसे कहते हैं ना CSS का जो एग्जाम वीक होता है। तो जो जर्नी होती है बुक स्टार्ट करने से एंड तक, आपने भी शॉर्ट नोट्स एंड पे बनाए और उनकी लेंथ क्या थी, और उन शॉर्ट नोट्स में क्या चीज़ें कैंडिडेट्स इनकॉर्पोरेट करें इवेंचुअली? When I started studying तो मैंने अपने एक नोट्स के रजिस्टर, हर सब्जेक्ट के रजिस्टर बना लिया था,
एट द एंड मैं उसको ऊपर से रिवाइज करती थी, मैं उस तरह मूव नहीं किया कि मैं पहले शॉर्ट बनाऊँ फिर वन लाइनर्स फिर इस तरह। तो पहले मैं थॉरली स्टडी करती थी, फिर आकर मैंने हेडिंग्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। और जो आपके नोट्स होते हैं ना, उससे मेजर चीज़ आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, कोई डाटा होना चाहिए। डाटा ना आप अंदर लिख लेंगे अगर आपको नॉलेज बेस है अच्छा वाला, और उस नोट्स में आपके रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपने क्या क्या कोड्स डालनी, क्या मैप्स डालने हैं, क्या स्टैट डालने हैं। तो आपके नोट्स बेसिकली दे आर लाइक द आउटलाइंस ऑफ योर क्वेश्चंस। तो उसको आउटलाइन ऑफ योर क्वेश्चन, उसमें हेडिंग्स अच्छी, आपकी डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, आपके मैप्स, आपकी कोटेशंस, आपके रेफरेंसेस, आपका डेटा, जिनको याद करके यू कैन कंस्ट्रक्ट योर होल आंसर। सो अच्छा, बहुत लोग एमपीटी से घबराते हैं कि एमपीटी एक नया इन्होंने बीच में स्टेप डाल दिया है, तो एमपीटी से घबराना चाहिए और नहीं, और एमपीटी को टैकल करने के लिए आई थिंक इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन एज वेल। डू वी नीड टू सेपरेटली प्रिपेयर फॉर द एमपीटी, या इट्स कवर्ड अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हैं? इट इज़ कवर्ड। इसके लिए कुछ, क्योंकि इसका क्राइटेरिया ओनली 33% है, तो जिसको थोड़ा सा भी आता है ना, ये कुड इजीली पास इन एमपीटी। बट अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना, दे वांटेड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, तो वो चीज़ें करें जिस तरह मैंने इस्लामियत के एमसीक्यूज किए, जो मुझे बाद में केसेस में भी हेल्प करेंगे, या मैथ्स के एमसीक्यूज करें ताकि वो क्वेश्चंस हेल्प हो जाए। अगर आप अपने रिटन पार्ट के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एमपीटी इज ऑलरेडी कवर्ड, यू डोंट नीड टू सेपरेटली वेस्ट योर टाइम while preparing for the MPT. Plus you need only 33% marks, और वो इतना बेसिक होता है कि majority आपकी थोड़ी सी भी रीडिंग का वो ब्रॉड हो एवेन्यू आप पढ़ते हो, तो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। Let's talk about your interview. What did you score in the interview and how did it go? I scored 150 marks. Right. And it was very good interview on my part. And it was 53 minutes long interview. 53 minutes long on average. CSS के interviews 20-25 minutes के जाते हैं, but इनका 53 minutes का गया, which could have gone either way. I mean, बुरा भी हो सकता था, अच्छा भी हो सकता था। confusing point. तो आप किस एरियाज पे खेले, किस तरह से पैनलिस्ट ने आपको वो किया, ब्रीफली जरा बताएं इंटरव्यू का, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इंटरव्यू अभी तो खैर it's too early for them to be worrying about the interview stage, but generally how was the interview and what are the things that worked in your favor? इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू था, इट वाज ओनली बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इट, long discussions. Each of the panelists put this question, governance and public policy, then started the discussion and we crammed it obviously. Then at the end we discussed economics and a bit of Islamic history and Pakistan history, and I dropped only 3 questions in the whole token interview. questions पूछे थे उन्होंने? No, they were not tokens. They were discussions. This panel did not ask what token questions. Last year there were a lot of alien token questions. अच्छा, आप नोटिस करें इनका पूरा इंटरव्यू उनके एक ऑप्शन के ऊपर गया है by and large, और and I was scoring was very good. I guess कि वो reason थे कि 85 marks इन्होंने लिए, so they wanted to test her in hot waters, और हर तरह से वो देखते कि वाकई इनका स्कोर justify होता है कि नहीं, and I think he was able to do a phenomenal job. Okay, so we wanted to know about your interview experience at KIPS as well. I think आपने यहाँ पे mocks दिए, आपका डॉक्टर साहब के साथ interaction हुआ, आपका senior panelist के साथ interaction हुआ. Could you briefly tell us about your experience at KIPS? How did it go? To what extent was it helpful in your final stage? I personally feel कि आपको डिफरेंट पैनल्स को फेस करना चाहिए ताकि जब तक आप लास्ट फाइनल पैनल के सामने जाए तो वो जो पैनल एंजाइटी वो कम से कम ना हो। इंटरव्यू एंजाइटी तो होगी ना, वो एक कुछ पार्ट एंजाइटी का रिलीव हो जाए। एंड व्हेन यू आर गिविंग पैनल मॉक्स एट डिफरेंट प्लेसेस, स्पेशली व्हेन आई केम टू KIPS, सो जब आप उस पैनल को फेस करते हैं ना, 4 आपके सामने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, यू आर फेसिंग दैम एंड यू आर फेसिंग द प्लेथरा ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज़ द मेन आई गेस करेज टू टेक दैट। तो अभी यहाँ पर इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू एंड इट वाज द टफेस्ट इंटरव्यू। Really? It was the toughest. So KIPS में इन्होंने toughest interview दिया, which I think prepared her for जिसकी मैंने अभी तक वीडियो नहीं मांगी क्योंकि जब तक मैंने कुछ सुनाया ही नहीं। अच्छा, so they grilled you and they put up with pretty tough questions. They grilled me so much I couldn't believe. मुझे था इससे बुरा मैं फाइनल नहीं दे सकती, तो वो आपको माइंडसेट बन जाता है ना कि इससे बुरा नहीं कुछ हो सकता। तो दैट वाज अ हेल्पफुल थिंग कि मेरी वो परेशानी दूर हो गई थी कि मैं इससे बुरा इंटरव्यू नहीं दे सकती। और बाकी क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑल द डोमेन्स, सो दे हेल्प कि मुझे मल्टीपल डोमेन्स। आपको ये नहीं पता होता फाइनली आपका पैनल किस तरह का होगा, वो किस माइंडसेट क्या है, चेयरमैन साहब की पर्सनालिटी किस तरह की है। सो स्पेशली एट KIPS आप कोशिश करते हो हर तरह की डोमेन से टेस्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो एस्पायरेंट्स अभी जो वो कर रहे हैं CSS की तरफ, उनको कोई आप ऐसी मोटिवेशन देना चाहें या कोई ऐसी बात बताना चाहें जिस तरफ टिल्ट हो? वो लोग बॉक डाउन हो जाते हैं कि यार 2-2.5% रेट है और लोग आपको ये भी कहते होंगे कि आपका तो इतना सिक्योर मेडिकल करियर था,
आप क्यों आ रही हैं इस तरफ, तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह टैकल करेंगी और क्या मोटिवेशन देंगी CSS के लिए लोगों को? CSS के लिए there is only one motivation: turn a deaf ear to everybody, and I guess confine yourself, your books in one room and study for the 7 months बस. अच्छा, इनके और हमने जितने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं ना, दे वर फुली डिटरमिन्ड कि यार हर हाल में हमने ये करना ही करना है. अभी एक कॉमन चीज मैंने देखी है सारे जो हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं कि यार दीज गाइज आर सो डिटरमिन्ड, स्पेशली एट द एज ऑफ 23, 24, 25, दे आर मतलब दूसरी तरफ ये देख ही नहीं रहे, दे आर टर्निंग अ डेफ ईयर, और इनको पता है कि यार बस मैंने यूनिडायमेंशनल होके बस अपने गोल पे फोकस करना है. अच्छा मरियम, कुड यू टेल अस के अच्छे इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है? कुछ लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ अर्सा अकेडमी चलेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं अकेडमी के बगैर नहीं हो सकता. सो वी वांट टू नो योर वेरी न्यूट्रल ओपिनियन कि अच्छे इदारे या मेंटोर का क्या रोल होता है इस जर्नी में. डिड यू प्रिपेयर ऑन योर ओन, या अगर आप कहीं गए तो क्या डायरेक्शन मिली, या एक अच्छे मेंटोर का क्या रोल होता है CSS की जर्नी के अंदर? आई बिलीव कि ब्लाइंडली स्टडी करने से कुछ नहीं होता. यू नीड अ डायरेक्शन. कोई आपको डायरेक्शन बता दे, फिर आप उस पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. वरना आप इस तरह क्या है सेल्फ स्टडी, यू नो, दिस इज यूनिवर्स टू कवर इन CSS. तो आई गेस कि गुड मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, यू कैन नॉट ईजिली गेट थ्रू दिस प्रोसेस. आपको टाइम डबल लगेगा. बिल्कुल, अगर आपने 7 मंथ्स में किया है एंड हैड टू बीन ऑन योर ओन, दे वुड हैव टेकन यू प्रोबेबली 1.5-2 साल टू गेट टू दैट. ऑप्टिमल तैयारी करने के लिए आपको एक चैनलाइज्ड अच्छे मेंटर डायरेक्शन वाली तैयारी के साथ आप, और ताकि आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहें. और आप रहें. स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं ना किसी के साथ. अगर आपको कोई स्केड्यूल मिल रहा है या कोई मेंटरशिप है तो आप स्ट्रीमलाइन होकर तैयारी करते हैं. आपको पता है आई हैव टू मीट माय दिस टास्क. वरना जब खुद ही सेल्फ स्टडी करें ना तो वी गेट लूज एंड वी गेट ओके, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. बिल्कुल, आपको पता होता है आना है अकेडमी, आना है पढ़ना है. सो इंस्टीट्यूट को पहले ज्वाइन करना चाहिए या तैयारी सेल्फ स्टडी करने के बाद ज्वाइन करना चाहिए आपके ख्याल में? बात तो फायदा ही नहीं ना, पहले ज्वाइन करें शुरू में तो जाएं, डायरेक्शन लें, ऑप्टिमाइज करें, जब फिर आप और मकसद इंस्टीट्यूट्स का होता है आपको इक्विप करना सेल्फ स्टडी मोड में से किक स्टार्ट और एक डायरेक्शन देते हैं, देन यू कैन इजीली रन अलोंग दैट डायरेक्शन. अच्छा ये बताएं कि आपका बैकअप प्लान क्या था? अगर खुदा ना खासा CSS ना होता तो आप PMS देती, CSS की बाकी अटेम्प्ट्स देती, किस हद तक, हाउ बैडली यू वांटेड दिस? और बैकअप प्लान आई एम अज्यूमिंग वुड हैव बीन मेडिकल, राइट? सो हाउ बैडली डिड यू वांट दिस? अगर आप कितनी अटेम्प्ट्स देना चाहती? आई हैड अप्लाइड फॉर CSS 2024 PMS, बट मैंने दिया कुछ भी नहीं. आई वाज श्योर कि ये अटेम्प्ट हो जाएगी, बट माय बैकअप प्लान वाज नॉट टू गिव CSS अगेन. अच्छा, उसकी क्या वजह है? So she did not want to take the CSS exam again. Why is that so? हम in this regard I'm very different sort of person. I thought कि मैंने जितनी efforts लगा दी ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती. अगर अभी भी नहीं मिल रहा ना, there is something else which I want. तो मुझे ताकि एक ही दफ़ा देना है, 100% देना है और रिजल्ट्स देखने हैं. अगर नहीं है तो I have to pursue something else. So you don't believe in second chances? No, I don't believe. So you आप कहती हैं कि बस एक दफ़ा करना है तो बस well and good, नहीं तो फिर you know I'll look for something else. Yes, अच्छा एक और सवाल, आपका डोमिसाइल पंजाब का है? Yes, पंजाब. तो आपका फेडरल लेवल पे वो आपको जो पोजीशन एलोकेट हुई है वो आपकी उसमें है. अच्छा बाकी सूबों से थोड़ा सा ये बता दें कि बाकी सूबों वालों को कितना फ़ायदा है? I mean पंजाब में ज़रा टफ होता है कंपटीशन, तो बाकी सूबों वालों के लिए क्या बात आप कहेंगी? बेसिक प्री रेगुलर्स का काम कर लें, वो मीट कर लें तो CSS इज़ नॉट रियली दैट बिग अ थिंग पंजाब के अलावा, ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसे ही. अभी सिंध रूरल में थोड़ा सा इशू है सीट्स का, दे हैव लेसर सीट्स. बाकी बलोचिस्तान और ये सिंध अर्बन भी सी के वहाँ की कैरी फॉरवर्ड इतनी बच जाती हैं हर साल के, और ये वो तो आई गेस स्पेशल एग्जाम हो सकता है वहाँ पे. तो दिस अगेन मैं कहूँगी कोई पैरामीटर नहीं डिसाइड करने का कि आपने CSS करना है या नहीं करना. अगर आपने करना है तो बस करना है ना, फिर वो फैक्टर्स नहीं देखने क्या सपोर्ट करें क्या नहीं. बट दिस इज अ रियलिटी कि दूसरे प्रोविंसेस के लिए आसान है CSS करना. जॉब के साथ CSS की तैयारी मैनेजेबल है या नहीं, इस पे आपका क्या? मैंने MBBS के साथ की. So you had your exams, you were studying, you were preparing for MBBS. Today I had my last exam. Right. So आप ये देखें कि इन्होंने CSS की जर्नी अपनी मेडिकल के साथ करके पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की है. Exactly. So I think that speaks volumes about कि यार जॉब के साथ आप कर सकते हो कि नहीं. अच्छा मरियम मुझे ये बताएं कि any message that you would like to give to the aspirants who are potential future bureaucrats है, कोई आपने बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, अब CSS की जर्नी जो है आपकी, अब उसको अगर आप वन लाइनर या समराइज करें या उसको एक नटशेल में बताएं तो व्हाट इज इट, व्हाट इज CSS, व्हाट इज दिस जर्नी अबाउट? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. क्या CSS एक मीन्स टू एन एंड है
या CSS एक एंड इन इटसेल्फ है? लोग CSS को देखते हैं कि यार ना हुआ तो टाइम्स आया है, मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा. मेरा तो ख्याल है दिस journey is truly transformative. It transforms you into a better human and individual. और मेरा ख्याल है CSS की जर्नी आपको हर चीज़ के लिए तैयार कर देती है. आपका क्या ख्याल है? I totally agree with you. I think कि बंदे की पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, these all the things they transform, they radically transform. मेरा ख्याल है it prepares you for every exam. Exactly, they prepare. सही है. और इसके अलावा कोई और आपने मैसेज देना हो, anything that you would like to say before we sign off? कोई एस्पायरेंट्स के लिए आपने कोई मोटिवेशनल चीज़ बतानी हो और कोई उनको हेल्प चाहिए हो तो किस तरह से वो कर सकते हैं आप? First of all, I would like to say कि if you want to do CS and you really have a burning passion for it, don't look for the failures or these type of things. Just put all of your efforts and then leave the rest in Allah. And I think He is the best decider and He will give you the best thing. Second, if you want any guidance from me, so you can contact me because I have recently now started my public page also. Right. And you can contact any one who has cleared CSS because everybody is there ready to help you in every domain. एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था. बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये अप्रोच ठीक है, ये अप्रोच ठीक है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट मेंटोर और टीचर्स के पास जाके. सो थोड़ा सा इस पे भी इलैबोरेट बता दें कि किसको फॉलो करें, मतलब हर एक की अप्रोच ही ठीक है या क्या करें. मैं तो कहता हूँ तो जो बंदा आपके साथ लाइन कर रहा है, जिसकी बात को समझ आ रही है. बहुत ज़्यादा गुरुज हैं लेकिन जो आपके साथ ठीक लग रहा है आपको, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज टू कुछ बेसिक प्रीरेक्विजिट्स. ऐसा ही है. आपका क्या ख्याल है कि कंफ्यूज कैंडिडेट्स के लिए क्या करना चाहिए? वो 4 लोगों के पास जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो डिफरेंट बात कर रहे हैं. Too many cooks spoil the broth. Right. तो किसी एक को फॉलो कर लें, उसको फिर ब्लाइंडली अच्छे से फॉलो करना है बस. अब फिर ये नहीं कि आप दरमियान में था कि एक अच्छा ढूंढ ले जो आपको ठीक लग रहा है, could be anyone, और उसको फिर आप फॉलो करें. क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को कंसल्ट करोगे उतने आप कंफ्यूज होगे, फिर दूसरे को नेगेट करेंगे एंड दैट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम. फिर वो मैस बन जाता है. आप कहते हैं मैं उसकी आउटलाइन फॉलो करूँ, उसकी करूँ. किसी एक को करें और उस पर बिलीव रखें ना कि वो आपको पार लगाएगा बस, और उसको फॉलो करते हैं. ये नहीं दरमियान में कोई दूसरा ढूंढ लें, फिर वो सारी पहले वाली एफर्ट्स आया जाती है. Last question, Mariam, what do you think of KIPS as an institute for CSS preparation? और इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या रिप्यूट है? आपका एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया है. जनरली कोई बंदा अगर KIPS आना चाह रहा है तो आप विदाउट एनी वो आप क्या सजेस्ट करेंगी? KIPS के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्रिटिकली बताएं. I believe that KIPS is a good institute. It gives you direction and streamlines your preparation onto a specific road. आप यहाँ आए, एक अपना प्रॉपर स्केड्यूल सेट करें, मेंटोर से मिलें, एवेल्युएशंस कराएं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन. फिर जब डायरेक्शन मिल गई ना, एंड यू थिंक यूर सेल्फ सफिशेंट, तो देन आप फिर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. बट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज यू नीड एन इंस्टीट्यूट, अ मेंटोर और समथिंग, एंड KIPS being an institute is a mentor also. So it is a very good choice if you want to come, you want to pursue your career as a bureaucrat. Right. Thank you so much. Thank you so much, Mariam, for coming all the way and spending this quality time with us. I hope this session will turn out to be extremely helpful for all of you. अपना ख्याल रखें, CSS को इंस्पायर करते रहें. We will be bringing more success stories with you. And inshallah, if you want to connect with Mariam, तो you can let us know. हम आपको इनसे connect भी कर देंगे. And you can ask her any questions. She will also be taking seminars at KIPS wherever she is. She will be coming here as a guest speaker या जब भी special sessions होते हैं. We would request Mariam to please keep visiting us and help you guys. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. Once again, Mariam Zahid, 4th position all over Pakistan from Pakistan Administrative Service, and Muhammad Shahrukh. Take care. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.